Hello everyone, welcome to EduNight. I am Sudeep Chakraborty and today I am going to discuss about accounting basics. In this video, I am going to teach you about some fundamental accounting concepts such as bookkeeping and accounting, transaction and event, accounting process, and some other similar concepts. If you want to get regular updates about our videos, then subscribe the channel and press the bell icon. And in order to get the PDF notes of my videos, join my Telegram channel Sudeep Sir Official. I have shared the link of my Telegram channel in the comment section. So let's start with the most common question. What is accounting? इसके दो definitions हैं. Number one, it is the language of business. Number two, it is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events, which are in part at least of a financial character, and interpreting the results thereof. This definition has been given by American Institute of Certified Public Accountants. So एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं पहले डेफिनेशन को. Accounting is the language of business. As we know, language is a medium of expression. We express our feelings, we communicate through language. So we can say business expresses itself through accounting. अभी business क्या express करेगा? Let us understand. See, the most important thing in a business is profit. Profit के बिना किसी भी business के लिए ज़्यादा दिन survive करना is difficult. Therefore, every person associated with the business, चाहे वो owner हो या money lender, is interested to know about the financial health of the business. मतलब business profit कमा रहा है या loss झेल रहा है. So in order to know the financial health of a business, we need a system, and that system is accounting. अकाउंटिंग के थ्रू हमको पता चलता है कि बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और कौन कौन से सोर्स में हम लोग पैसे को खर्च कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट हमने कमाया या कितना हमको लॉस हुआ. ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमको मिलता है थ्रू अकाउंटिंग. अगर अकाउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे, अकाउंटिंग एक सिस्टम है, अगर ये सिस्टम हम लोग बिजनेस में फॉलो नहीं करेंगे, देन हमको बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा. कितना कमाया, कितना खर्च किया, फ़ायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, इन सब के बारे में we'll have no idea. That's why accounting is known as the language of business, because business expresses its financial health through accounting. By the way, one more point I would like to add कि प्रॉफिट को बिजनेस में अदरवाइज बॉटम लाइन भी बोलते हैं. याद रखिएगा ये पॉइंट. अभी आते हैं दूसरे डेफिनेशन पे. इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transactions, and events, which are in part at least of a financial character, and interpreting the results thereof. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि किस चीज़ का रिकॉर्डिंग, किस चीज़ का एनालिसिस एंड किस चीज़ का समराइजिंग. द आंसर इज ट्रांजैक्शन. In accounting, we record, analyze, summarize the transactions in order to find out the profit or loss of the business. अल्टीमेट एम हम लोग अकाउंटिंग करने का ये होता है कि हमको पता चले कि बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, और प्रॉफिट हुआ कितना और कितना लॉस हुआ. तो ये सब हमको कैसे पता चलता है? ये सब हमको पता चलता है थ्रू ट्रांजैक्शंस. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ट्रांजैक्शंस. उसी को रिकॉर्ड करते हैं, उसी को एनालाइज करते हैं, उसी को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, उसी से हमको पता चलता है कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस ट्रांजैक्शन के बारे में समझते हैं. और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है इवेंट. बोथ आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. तो इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेंट. सी, transaction and event are closely related to each other. Transactions are the economic activities which impacts the business financially, whereas events are the regular activities which may or may not have a financial impact on the business. तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस में कई सारे एक्टिविटीज जो होते हैं, जो रेगुलर एक्टिविटीज होते हैं बिजनेस में, उन्हीं रेगुलर एक्टिविटीज को हम लोग इवेंट बोलते हैं. अब इवेंट दो तरह के हो सकते हैं. एक हो सकता है फाइनेंशियल इवेंट और एक होता है नॉन फाइनेंशियल इवेंट.
फाइनेंशियल इवेंट किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल इवेंट वो इवेंट होता है जिसका बिजनेस के ऊपर कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इम्पैक्ट? फाइनेंशियल इम्पैक्ट मीन्स जिस इवेंट की वजह से बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है, मतलब कैश आ रहा है, या फिर कैश का आउटफ्लो हो रहा है, मतलब कैश जा रहा है. सो इफ बिकॉज ऑफ एन इवेंट देयर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश और देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश, तो हम लोग उस इवेंट को बोलते हैं फाइनेंशियल इवेंट. और अगर किसी इवेंट की वजह से देयर इज नो फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, देन दैट इज नोन एज नॉन फाइनेंशियल इवेंट. अब ट्रांजैक्शन और इवेंट कैसे रिलेटेड है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. सेकेंड पॉइंट को देखते हैं. इवेंट्स विच हैव ए फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस आर नोन एज ट्रांजैक्शंस. मैंने अभी भी क्या कहा? इवेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर, दूसरा इज नॉन फाइनेंशियल नेचर. तो जो इवेंट्स फाइनेंशियल नेचर का होता है, जिस इवेंट्स का बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, उसी इवेंट्स को हम लोग ट्रांजैक्शंस कहते हैं. एंड द इवेंट्स विच आर ऑफ नॉन फाइनेंशियल नेचर, they are not transactions, they are simply events. So we can say all transactions are events, but all events are not transactions, because only events of financial nature can be called as transactions. ठीक है? So events are the regular activities which may or may not be of financial nature, but transactions are the economic activities which are of financial nature. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको. नेक्स्ट वन, एन इवेंट कैन ऑल्सो बी एन आउटकम ऑफ अ ट्रांजैक्शन. कभी कभी इवेंट कैन बी एन आउटकम ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑल्सो, लाइक an increase or decrease in company's assets and liabilities after a purchase or sale. अभी जान लेते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में. Transaction is an exchange of goods or services in terms of money between two or more parties. Transactions are recorded in the books of accounts with a journal entry, but events are not. ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बट इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं. मेनली यहाँ पे इवेंट्स मतलब नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स के बारे में हम लोग बोल रहे हैं. फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं. फाइनेंशियल इवेंट्स विच इज अदरवाइज नोन एज ट्रांजैक्शन, दे आर रिकॉर्डेड, बट नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड. वाई दे आर नॉट रिकॉर्डेड? बिकॉज दे डोंट हैव एनी फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस. और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं आइटम्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जिसका बिजनेस के ऊपर कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है. Since non-financial events do not have any financial impact on the business, it does not affect the cash inflow or cash outflow of the business, they are simply ignored. अभी थर्ड पॉइंट पे चलते हैं. Transactions occur on a regular basis and it can be in the form of cash or credit. Transactions regularly होता है एंड ये कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है. कैश ट्रांजैक्शन मीन्स इमीडिएटली आपको कैश मिल जाता है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन मीन्स कैश पेमेंट या कैश जो रिसीव्ड है वो फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हुआ. ठीक है? So now let us understand the differences between transaction and events. Transactions always have a direct impact on the financial position of a business, whereas an event may or may not have a direct impact on the financial aspect of the business. In accounting, all the transactions are recorded, but in case of events, only those events are recorded which are of financial nature. And जैसे कि मैं कह चुका हूँ, जो इवेंट फाइनेंशियल नेचर का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन. The recording of transaction helps in analysis and interpretation of financial soundness of the business, but the same cannot be said about events because mainly यहाँ पे non-financial events के बारे में बोल रहे हैं. Non-financial events does not have any impact on the financial soundness of business because it is of non-financial nature. उसका कोई भी impact नहीं होता, financial impact कुछ भी नहीं होता business के ऊपर. But transaction का definitely होता है. ठीक है? बिजनेस के फाइनेंशियल साउंडनेस के ऊपर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है, बट इवेंट्स का मतलब नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स का देयर इज नो इम्पैक्ट. इवेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनल इवेंट क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, लाइक सप्लाइंग ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट. एंड एक्सटर्नल इवेंट क्या होता है? जो आउटसाइड होता है, जो which takes place outside the organization or with an external organization, like purchasing or selling of goods from or to another enterprise. Hence, I repeat, we can say that all transactions are events, but all events are not transactions, because events of only financial nature can be called as transaction. So let me give you some examples of events and transactions. Appointment of employees, receipt of order for supply of goods, an employee resigning from the organization. These are the examples of events.
introduction of capital by the owner, withdrawal of cash by the owner for personal use, sale of goods or asset for cash or credit. These are the examples of transactions. Now let me ask you a question. Which of the following is not a transaction? Number one, purchase of an asset on credit. Number two, withdrawing of money by the owner for personal use. Number three, purchase of asset for cash. Number four, strike by the employees. You can write your answer in the comment section. So आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा. Now let's move to the next part. बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. एक और कॉमन सा सवाल जो बच्चों के दिमाग में होता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सी, as we discussed earlier, accounting is an art of recording, classifying, and summarizing the transactions. So the recording part of accounting is known as bookkeeping. जो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट होता है बिजनेस का, जहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसी पार्ट को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं. दैट पार्ट इज नोन एज बुक कीपिंग. सो वी कैन से accounting is a system and bookkeeping is a part of accounting system which is concerned with the recording part. तो अकाउंटिंग का जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसी इनिशियल स्टेज को वी कॉल्ड बुक कीपिंग. सो लेट अस सी. Bookkeeping is a narrow concept and is a part of accounting. It is the primary stage of accounting and it is concerned with the recording part of accounting. The objective is to maintain systematic records of financial transactions. Bookkeeping involves maintenance of vouchers of payments and receipts which ultimately helps in accounting. तो ये voucher क्या होता है? See, every transaction is recorded along with the documentary evidence. हर एक transaction का एक documentary evidence रहता है. Documentary evidence मतलब एक paper evidence रहता है हर एक transaction का, रहना भी चाहिए. Because अगर किसी transaction का documentary evidence नहीं होता तो we can doubt the authenticity of the transaction. शायद वो transaction fake भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा हूँ तो या तो मैं चेक में पेमेंट करूंगा या तो मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा. अगर ऑनलाइन ट्रांसफर या चेक पेमेंट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट इन माय पासबुक. बट और एक तीसरा उपाय भी है, मैं उसको कैश पेमेंट कर रहा हूँ एंड इफ आई एम पेइंग माई एम्प्लॉय बाय कैश तो डेफिनेटली मैं उनसे कुछ ना कुछ एक पेपर पे साइन ज़रूर करवाऊंगा कि उन्होंने इतना पैसा लिया, इस डेट पे लिया. सो साइन में ज़रूर करवाऊंगा और उसी वाउचर को, उसी पेपर को बोलते हैं वाउचर. दैट इज़ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अगर एक ट्रांजैक्शन का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो हम लोग ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि शायद वो ट्रांजैक्शन फेक भी हो. ठीक है, वो झूठा ट्रांजैक्शन भी हो सकता है. सो किसी भी ट्रांजैक्शन के जेन्युइननेस के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ट्रांजैक्शन शुड हैव अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. और उसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम लोग बोलते हैं वाउचर. So vouchers are an evidence of a business transaction in a documentary form. It can be a receipt voucher, it can be a payment voucher. जब हम लोग कोई पैसा रिसीव करते हैं फ्रॉम ए कस्टमर तो हम लोग रिसीट वाउचर मेंटेन करते हैं, और जब हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं तो वी मेंटेन पेमेंट वाउचर. रिसीट वाउचर के नॉर्मली दो कॉपीज बनते हैं. एक हमारे पास रहता है जो उसका डुप्लीकेट है वो हमारे पास रहता है, और ओरिजिनल जो है हम लोग कस्टमर को पे कर देते हैं. जिसने पेमेंट किया है उसको हम लोग पे कर देते हैं, उसको हम लोग दे देते हैं डुप्लीकेट का, जो ओरिजिनल जो रिसीट है. डुप्लीकेट अपने पास रहता है, ओरिजिनल जिसने पेमेंट किया है उसको हम लोग दे देते हैं एज ए प्रूफ. उसके पास भी एक प्रूफ रहता है, हमारे पास भी एक प्रूफ रहता है. और जो पेमेंट वाउचर होता है उसका एक ही कॉपी बनता है. वो नॉर्मली बिजनेस के पास ही रहता है, वो बिजनेस अपने पास ही रखता है, उसका एक ही कॉपी बनता है, उसका डुप्लीकेट नहीं बनता. ठीक है, सो ये हो गया वाउचर के बारे में. क्लियर? Now let us understand about the concept of accounting. Accounting is a broader concept that involves bookkeeping. Accounting starts where bookkeeping ends. जैसे मैंने कहा कि bookkeeping is the first stage of accounting. तो जैसे bookkeeping खत्म होता है, accounting start होता है. और accounting is concerned with the analysis, summarizing, classifying, interpretation. ये सारे के सारे जो part होते हैं ये accounting में आते हैं. Okay, जैसे हमने पढ़ा था कि accounting is the art of recording, classifying, summarizing. तो recording वाला part bookkeeping में चला गया. बाकी classifying, summarizing, interpretation, ये जो parts होते हैं ये accounting में आते हैं. तो accounting is concerned with the analysis and interpretation part, which ultimately leads to finding out profit or loss of the business.
and it is a specified function and is normally performed by skilled and senior staff. अकाउंटिंग के लिए थोड़ा एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होता है, थोड़ा डिटेल टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है, बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल नेचर का जॉब होता है. सो वी नीड अ मोर स्किल्ड पर्सन, एंड सीनियर स्टाफ हो तो और भी अच्छा है, बिकॉज दिस इज अ मोर टेक्निकल फंक्शन. अकाउंटिंग, it is more technical as compared to bookkeeping. So it is more analytical and dynamic in nature. And most important point, without bookkeeping, accounting is incomplete. कैसे? Because bookkeeping is the first stage. अगर bookkeeping नहीं होगा तो accounting कैसे होगा? अगर हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, अगर हम लोग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा, तो कैसे हम लोग उसको इंटरप्रेट करेंगे, कैसे उसका एनालिसिस करेंगे? सो विदाउट बुक कीपिंग अकाउंटिंग इज टोटली इनकम्प्लीट. तो अभी हम लोग देख लेते हैं वाउचर्स. ये होता है रिसीट वाउचर का सैंपल. कुछ जरूरी नहीं है कि ऐसे ही फॉर्मेट फॉलो हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से बनाता है, बट बेसिकली फॉर्मेट सिमिलर होता है, ऐसे ही होता है, थोड़ा चेंजेस भी हो सकता है, बट द स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम. देखिए यहाँ पे हो गया रिसीट फ्रॉम, मतलब पैसा किससे मिला, कितना पैसा मिला, क्यों मिला, किस बेसिस पे, मतलब कौन से सोर्स से मिला, लाइक इट्स अ फीस या इट्स अ पेमेंट फॉर एनी गुड्स परचेज्ड. बीइंग फॉर में हम लोग लिखते हैं रीजन, तो रिसीट फ्रॉम में नाम लिख दिया, सम ऑफ में लिख दिया हम लोग अमाउंट, वर्ड्स में कितना मिला, और बीइंग फॉर में हम लोग लिख रहे हैं कि किस बेसिस पे मिला, कौन से रीजन के लिए मिला. देन यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, इंडियन करेंसी में रुपी डालेंगे यहाँ पे, एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन रिसीविंग द कैश. ठीक है. देन विल कम टू द पेमेंट वाउचर. पेमेंट वाउचर में आप देख सकते हैं अमाउंट कितना हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, कितने क्या कौन से मेथड से पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, चेक पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, एंड किस रीजन से पे कर रहे हैं. वाई, सैलरी दे रहे हैं या कोई पुराना ड्यूज था वो क्लियर कर रहे हैं. देन नीचे देखिए अप्रूव्ड बाय, मतलब ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किसने किया, किसके परमिशन से ये पेमेंट किया जा रहा है. देन पेड बाय, मतलब हु इज मेकिंग द पेमेंट, किसके हाथ से पैसा जा रहा है. ओके. एंड देन पे का सिग्नेचर भी रहता है, जिसने पैसा रिसीव किया, द पर्सन हु इज रिसीविंग द मनी इज नोन एज पे, तो उसका भी सिग्नेचर रहता है, उसका नाम और सिग्नेचर भी रहता है. तो ये होता है पेमेंट वाउचर. एंड लेट अस अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग प्रोसेस इन ब्रीफ. ये होता है अकाउंटिंग प्रोसेस इन ब्रीफ. अगली वीडियो में मैं इसका डिटेल डिस्कशन करूंगा. सो अभी देख लेते हैं ट्रांजैक्शन. सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन, देन उसका वाउचर बनता है. ट्रांजैक्शन का हम लोग वाउचर बनाते हैं, जो इसको हम लोग अदरवाइज बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. Then those transactions are posted in primary books, and then they are posted in secondary books. And after that, we prepare trial balance. From primary books and secondary books, we prepare the trial balance. And trial balance बनने के बाद हम लोग उसी trial balance को base बनाकर we prepare financial statements. तो ये था अकाउंटिंग प्रोसेस इन ब्रीफ. अभी देखते हैं डिटेल में. सबसे पहले आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. देन दोस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, जिसको हम लोग प्राइमरी बुक बोलते हैं. जर्नल इज नोन एज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. ओके. सबसे पहला एंट्री हम लोग जर्नल में करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस का. सबसे फर्स्ट एंट्री हर एक ट्रांजैक्शन का जर्नल में होता है. देन वी प्रिपेयर लेजर एंड सब्सिडरी बुक्स, इनको बोलते हैं सेकेंडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स में आप देख सकते हैं आता है परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक. देन वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, एंड उसी ट्रायल बैलेंस से फाइनली बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है. इन दोनों को कंबाइंडली बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट. एंड देन देयर इज बैलेंस शीट, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट. सो आई होप यू आर क्लियर टिल नाउ, जितना मैंने आपको समझाया. अभी वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर? नंबर 1, goods taken from the business by the owner for his or her personal use. Number 2, interviewing the candidates for employment. Number 3, sale of household furniture. Number 4, received an order for sale of goods. इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा. और अभी वक्त हो गया है जो क्वेश्चन मैंने आपको ड्यूरिंग द वीडियो पूछा था उसका आंसर बताने का. मैंने आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजैक्शन? A, purchase of an asset on credit. B, withdrawing of money by the owner for personal use. C, purchase of asset for cash. And D, strike by employees. Answer is D, strike by employees. Why? Because this does not have any financial impact on the business.
बाकी तीनों का आप देख लें तो उसका बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, लेकिन स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़ का कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है बिजनेस के ऊपर. दैट्स वाई स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉयज़ इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन and keep following our channel. Thank you. Stay safe. Take care.